Sorry, this is the play. Post Office, Rabindranath Tagore. ट्रांसलेटेड बाय देवव्रत मुखर्जी। ठीक है, तो जो कॉमनली हम पढ़ते हैं जो ट्रांसलेशन, आई हैड टोल्ड यू दैट द पोस्ट ऑफिस इट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, है ना, बंगाली में जो है ये लिखा गया था बांग्ला में, तो बांग्ला से ट्रांसलेट होके ये इंग्लिश में आया एंड द ट्रांसलेशन वाज नॉट डन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। जनरली ऐसा होता है कि हम उन्हीं लोगों के ट्रांसलेशन जिसने लिखा होता है ओरिजिनली उसी के ट्रांसलेशंस भी पढ़ते हैं, बट इन दिस केस द ट्रांसलेशन वाज द मोस्ट commonly available translation of the post office is by Devvrat Mukherjee. It was first published in 1914. ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये जब प्ले लिखा गया था और पब्लिश हुआ था वो ईयर कौन सा था? 1914. You can see the preface of the play. The preface क्या होता है? It is a sort of an introduction to the play by a person who has read the play. Generally preface जो है वो writers खुद लिखते हैं, but sometimes preface is also written by critics or a friend or a person or a literary figure who admires that play or writing. तो यहाँ पे preface जो है वो किसने लिखा है? You should remember this. The preface was written by W.B. येट्स। प्रेफेस में आप नीचे जो है ये सिग्नेचर देख सकते हो, नाम देख सकते हो, ये कौन है? W.B. येट्स। W.B. येट्स वाज अ इंग्लिश पोएट एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे कि हु आर द मेजर कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर्स में माधव एंड अमल। अमल इज अ चाइल्ड हु वाज अडॉप्टेड बाय माधव। सुधा जो है वो फ्लावर गर्ल है। Doctor, there is a doctor, there is a dairyman, there is a watchman, there is Ghaffar, then there is village headman, there is King's Herald and royal physician. Now this is the first act of the play. जो फर्स्ट both the acts are played out in the house of Madhav. अगर आपसे पूछा जाए कि प्ले की सेटिंग क्या है या फर्स्ट एक्ट कहाँ पे इनैक्ट हुई, सेकेंड एक्ट कहाँ पे इनैक्ट हुई, इन बोथ केसेस इट इज माधव्स हाउस। और माधव्स हाउस क्यों है? बिकॉज अमल वॉज नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द हाउस। पूरा जो एक्शन आपका जो प्ले का फोकस्ड है वो किस पे है? वो अमल पे फोकस्ड है। और अमल के साथ क्या प्रॉब्लम थी? He was suffering from some disease and because of that disease doctor had advised him not to go outside in the open atmosphere. Okay, so this is how the play is. Now it is very difficult to read the play from this. I just wanted to show you how the play looks. ठीक है, अब आपको एक आइडिया हो गया कि जो है प्ले 1914 में लिखा गया था, उसका प्रेफेस किसने लिखा था? The preface was written by W.B. Yeats और दो एक्ट्स हैं आपकी, और दोनों एक्ट्स कहाँ पे हैं? In the house of Madhav. Now we will read the play from this version. We are going to read some select portion of the play. पूरा प्ले हम करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, but we will do certain selected portion. For example, Act 1 में गफ्फार is a character. गफ्फार कौन है? क्या करता है वो?
See, now Ghaffar asked Madhav what was the reason of adopting a child. Then you should know, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में कि माधव ने अमल को क्यों अडॉप्ट किया. Ghaffar, but you aren't a child and you have no child in the house. Why worry then? Madhav, oh, but I have brought a child into the house. तो माधव गफ्फार को क्या बता रहा है कि मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है. गफ्फार, indeed, how so? Madhav, you remember how my wife was dying to adopt a child? Ghaffar, yes, but that's an old story. You didn't like the idea. सो इट वॉज हिज वाइफ हु वांटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फर्स्ट, है ना. जो उसकी वाइफ थी वो क्या चाहती थी कि वो लोग एक चाइल्ड को अडॉप्ट करें, बट इनिशियली माधव डिड नॉट अग्री विद हिज वाइफ. माधव को जो है ये आइडिया पसंद नहीं था. Ghaffar, yes, but that's an old story. You didn't like the idea. Madhav, you know, brother, how hard all this getting money in has been. That somebody else's child would sail in and waste all this money earned with so much trouble. Oh, I hated the idea. But this boy clings to my heart in such a pure sort of way. So, what was the why Madhav agreed to adopt this child? Because recently he had been earning a lot of money. जो जो माधव का बिजनेस था वो बहुत अच्छा चल रहा था. उसके पास क्या आ रहे थे, बहुत पैसे आ रहे थे. सो दिस मेड हिम थिंक कि इफ दे डू नॉट हैव अ चाइल्ड, तो माधव के मरने के बाद क्या होगा, किसी के पास भी उसकी जो भी उसका क्लोजेस्ट रिलेशन में होगा उसके पास क्या चली जाएगी, सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी. और माधव ये नहीं चाहता था, है ना. वो चाहता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जो वेल्थ है वो किसी ऐसे इंसान को दे जो कि उसका अच्छा यूज कर सके. सो व्हाट ही थॉट कि नाउ इट इज टाइम फॉर देम टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. ठीक है, इसीलिए माधव ने क्या किया, एक बच्चे को अडॉप्ट किया ताकि उसको पता रहे कि जो भी वो प्रॉपर्टी या जो भी वेल्थ कमा रहा है वो किसके पास जाएगा. So that's the trouble. And your money goes all for him and feels jolly lucky it does go at all. So now Ghaffar is making fun of Madhav क्योंकि सबको पता है कि अमल की जो है तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है he will not survive this disease. तो एक्चुअली जो पर्पस था माधव का एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने का, वो जो है क्या हो जाता है, वो पर्पस डिफीट हो जाता है. क्योंकि अमल अगर वो इफ ही डाइज तो फिर से जो है माधव की प्रॉपर्टी के लिए कोई भी वारिस नहीं बचेगा. How well, and where did you pick him up? Madhav, he is the son of a man who was a brother to my wife by village ties. He has had no mother since infancy, and now the other day he lost his father as well. ठीक है, तो अमल कहाँ से आया था? अमल was द चाइल्ड ऑफ अ ब्रदर ऑफ हिज वाइफ. माधव की वाइफ के जो है रिश्ते में कोई ब्रदर लगता था, उसका बेटा है अमल, है ना. और he had lost his mother very early in his life. जो उसकी मदर थी उसकी बहुत पहले ही डेथ हो गई थी. और अब फाइनली क्या हुआ, उसके फादर की भी डेथ हो गई. सो देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ अमल. इसीलिए माधव ने क्या किया, उसको अडॉप्ट कर लिया. Poor thing, and so he needs me all the more. The doctor says all the organs of his little body are at loggerheads with each other, and there isn't much hope for his life. There is only one way to save him, and that is to keep him out of this autumn wind and sun. But you are such a terror. What with this game of yours at your age too, to get children out of doors? God bless my soul. So I am already as bad as autumn wind and sun. But friend, I know something too of the game of keeping them indoors. When my day's work is over, I am coming in to make friends with this child of yours. तो गफार जो है वो उसको क्या कहता है, गफार माधव को बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और जब वो उसका पूरा दिन का वो काम कर लेगा तब वो आके अमल से बात करेगा ताकि उसका मन जो है वो बाहर जाने को ना हो, उसका एंटरटेनमेंट घर के अंदर ही होता रहे. So now I will skip some portion. So now you know why Madhav adopted Amal और अमल का adoption जो है वो कहाँ से हुआ.
This we have already done. Amal, when Amal asked Madhav what is he going to do inside, तो माधव ने क्या बोला था? He is going to read a lot of books, और फिर जब वो बहुत सारी बुक्स पढ़ लेगा, he will become very knowledgeable, then he can become a पंडित. Okay. So when Madhav goes out, Madhav has to go and work. तो माधव जब चला जाता है, then we had read कि बारी बारी से ये डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं. पहले कौन आता है? डेयरी मैन आता है, द कर्ड सेलर. उसके बाद जो है वॉचमैन आता है. Then the character who comes, now see, this is where the this starts. Watchman, oh, from door to door all through the country. He is asking कि what a postman does. एक जो postman होता है उसका क्या काम होता है? वो क्या करता है? He goes from door to door all through the country, और क्या करता है? Letters deliver करता है. So Amal is very excited because he is inbound, because he is asked not to go out. तो उसको सारे काम कौन से पसंद आ रहे हैं? जिसमें आपको घर के अंदर नहीं रहना पड़ता है ना. तो उसको अचानक से जो है ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि वो पूरी कंट्री में जो है एक पोस्टमैन पूरी कंट्री में घूम के सबको क्या करता है? लेटर बांटता रहता है. सो इंस्टेंटली ही सेज, आई विल बी द किंग्स पोस्टमैन व्हेन आई ग्रो अप, है ना. तो वो बड़े होके क्या बनना चाहता है? वो बड़े होके किंग्स पोस्टमैन बनना चाहता है. Postman, indeed. Rain or shine, rich or poor, from house to house, delivering letters. That's very great work. Amal, that's what I would like best. What makes you smile so? Oh, yes, your work is great too. When it is silent everywhere in the heat of the noonday, your gong sounds, dong, dong, dong. And sometimes when I wake up at night all of a sudden and find our lamp blown out, I can hear through the darkness your gong slowly sounding, dong, dong, dong. Watchman, there is the village headman. I must be off. If he catches me gossiping with you, there will be a great to do. ठीक है. तो वॉचमैन को जो है अमल क्या बताता है कि वो किंग का पोस्टमैन बनना चाहता है. एंड देन ही लीव्स. व्हाई द वॉचमैन लीव्स? बिकॉज हेडमैन जो है वहां पे आ रहा है. एंड हेडमैन इज अ वेरी विशियस कैरेक्टर, ही इज अ क्रूअल कैरेक्टर. सब उसको क्या करने की कोशिश करते हैं? उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. It would be splendid to have a letter from the king every day. I'll read them at the window, but oh, I can't read writing. Who'll read them out to me? I wonder. Auntie reads a Ramayan, she may know the king's writing. If no one will, then I must keep them carefully and read them when I'm grown up. But if the postman can't find me, Headman, Mr. Headman, may I have a word with you? So he has taken this fantasy वन स्टेप अहेड, है ना. वो क्या चाहता है कि वो सिर्फ किंग का जो है के लिए पोस्टमैन ही ना बने. वो क्या एडिशनली वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो है किंग उसको रोज लेटर लिखें. बट देन ही रियलाइजेस दैट ही डजंट नो हाउ टू रीड. अमल को जो है पढ़ना नहीं आता. तो वो सोच रहा है कि जब किंग के तरफ से मेरे पास लेटर आएंगे तो उनको कौन पढ़ेगा. देन ही फाइंड्स द सोल्यूशन कि जो उसकी आंटी हैं उनको पढ़ना आता है, या तो वो पढ़ देंगी, या फिर जब वो बड़ा हो जाएगा उसे खुद पढ़ना आ जाएगा तब वो अपने लेटर्स खुद पढ़ेगा. Now he calls the headman. Headman, who is yelling after me on the highway, oh you wretched monkey. Amal, you are the headman. Everybody minds you. Headman, looking pleased, yes, oh yes, they do, they must. Do the king's postmen listen to you? They've got to. By Jove, I would like to see. Will you tell the postman it's Amal who sits by the window here? What's the good of that? In case there is a letter for me, a letter for you, whoever's going to write to you. If the king does,
Ha ha, what an uncommon little fellow you are. The king indeed. Aren't you his bosom friend? You haven't met for a long while, and the king is pining, I'm sure. Wait till tomorrow, and you'll have your letter. So now Amal, he gets thinking that if the king writes a letter to him, अगर जो है किंग उसको लेटर लिखते हैं तो उसके पास पहुंचेगा कैसे? तो वो हेडमैन को बुलाता है अपने पास. हेडमैन इज जिसको आप जो है गांव का मुखिया या सरपंच कहते हो. तो वो मुखिया को क्या बोलता है कि जो है ही वांट्स हिज लेटर टू बी डिलीवर्ड टू दिस विंडो. क्योंकि वो मुखिया है, वो सबको जानता है, तो वो पोस्टमैन से ये कह सकता है कि जो है अमल तुमको इस विंडो पे मिलेगा, और अगर अमल का कोई लेटर आता है तो तुम उसको वहां पे डिलीवर करना. So now, while he was saying this, headman comes to know of the fantasy that this child has. है ना? अब हेडमैन को पता चल जाता है, मुखिया को पता चल जाता है कि जो है अमल क्या चाहता है कि राजा उसको लेटर लिखे, और वो उसकी मजाक भी बनाता है इस बात पे कि जो है राजा तो तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है, और वो तुमने इतने दिन से उससे बात नहीं करी, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होगा, है ना? तो वो जल्दी ही तुम्हारे लिए लेटर लिखेगा. सो ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हेडमैन ही जाके बाद में राजा को बताता है कि अमल ऐसा चाहता है. Then a girl enters. ठीक है. Now what is this sign? Who are you walking there? How your anklets tinkle. Do stop a while, dear, won't you? जब हेडमैन चला जाता है तब क्या होता है कि उसको कुछ आवाज आती है अमल को. टिंकल मतलब छन छन, है ना? उसको आवाज आती है. वो कहाँ से आवाज आ रही होती है? जो गर्ल ने ये जो फ्लावर गर्ल है उसने जो पायल पहनी होती है उसकी आवाज आ रही होती है, और उससे वो अट्रैक्ट होता है अमल, और उस गर्ल को अपने पास बुलाता है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? द नेम ऑफ द गर्ल इज सुधा. ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि सुधा क्या काम करती है. वो फ्लावर्स लेके आती है मार्केट से, एंड देन हर फैमिली मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, उसके गार्लैंड्स बनाते हैं, माला बनाते हैं, और उनको मार्केट में बेचते हैं. ठीक है. जब सुधा चली जाती है उसके बाद कौन आता है? अ ट्रूप ऑफ बॉयज. गांव के कुछ बच्चे, और उन बच्चों के साथ जो है अमल क्या करता है, वो अपने सारे टॉयज उन बच्चों को दे देता है. क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो उसके सामने ही खेलते रहे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्ट. अब सेकेंड एक्ट में you will find that Amal is in bed. He is lying down. He is not feeling very good. Can't I go near the window today, uncle? Would the doctor mind that too? Madhav: yes, darling. You see, you have made yourself worse squatting there day after day. Amal: oh no, I don't know if it's made me more ill, but I always feel well when I am there. I hope you all can understand this. आप लोगों को समझ में आ रहा है? Play? Yes, ma'am. Okay. Amal: uncle, I fear my fakir will pass and not see me by the window. Yo fakir? अच्छा, I had asked you कि जो है who is Gafar? Gafar कौन है? Gafar is a fakir. Yo fakir, whoever's that. He comes and chats to me of the many lands where he's been. I love to hear him. How's that? I don't know of any fakirs. This is about the time he comes in. I beg of you, by your dear feet, ask him for a moment to talk to me here. Gafar enters in a fakir's guise. Okay, so in the second act, we see that his situation has worsened. जो उसकी तबीयत है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से माधव उसको विंडो पे भी नहीं बैठने दे रहा है. बिकॉज द एयर दैट व्हेन ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड एयर इट वर्सन्स हिज फीवर. जैसे ही उसका कॉन्टैक्ट होता है बाहर की हवा से तो क्या होता है, उसका फीवर और भी ज्यादा खराब हो जाता है. बट अमल क्या चाहता है? अमल चाहता है कि वो विंडो पे ही बैठा रहे,
ताकि जो भी उसने इतने फ्रेंड्स बनाए हैं जो कि उससे विंडो पे आके बात करते थे, वो क्या करेंगे, उसको मिस करेंगे। तो सबसे पहले जो है कौन आता है, गफ्फार आता है। Where have you been this time, Fakir? To the Isle of Parrots. I'm just back. The Parrots Isle? Is it so very astonishing? Am I like you, man? A journey doesn't cost a thing. I tramp just where I like. तो अमल जो है वो उससे फकीर से जो है क्या पूछता है कि वो कहाँ था। तो वो क्या बताता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, पैरट्स आइल से। How jolly for you. Remember you promised to take me with you as your follower when I am well. तो गफ्फार ने जो है क्या प्रॉमिस किया हुआ है अमल को कि जब अमल ठीक हो जाएगा तो वो जब भी वो कहीं भी जाएगा वो अमल को लेके जाएगा अपने साथ। ओके, it's now he gives a description of parrot's isle. ये जो parrot's isle जहाँ पे की गफ्फार था वो कैसा दिखता है। It is a land of wonders. It is a haunt of birds. There is no man, and they neither speak nor walk. They simply sing and they fly. ठीक है, तो जो पैरट्स आइल है गफ्फार जब उसका डिस्क्रिप्शन देता है तो उसको क्या बताता है कि एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन रहती हैं, बर्ड्स रहती हैं। देयर इज नो मैन देयर। और वो बर्ड्स क्या करती हैं पूरे दिन, वो उड़ती हैं और गाना गाती हैं। दे सिंग एंड दे फ्लाई। It's on the sea, green hills are there. So he keeps on telling him about this imaginary land. And why is he telling him about this imaginary land? Because he wants to keep him distracted from his sickness, ताकि वो अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे। गफ्फार उसको जो है ऐसे ही कहानी बना के सुनाता रहता है कि उस आइलैंड में क्या क्या है। Now Amal starts thinking about the dairy man, कि अभी तक जो है dairy man नहीं आया। I fancy I have seen it often in days long gone by. How long ago I can't tell. Do you know when? I can see it all. There, the king's postman coming down the hillside alone, a lantern in his left hand, and on his back a bag of letters, climbing down for ever so long, for days and nights, and where at the foot of the mountain the waterfall becomes a stream, he takes to the footpath on the bank and walks on through the rye. Then comes the sugarcane field, and he disappears into the narrow lane cutting through the tall stems of sugar canes. Then he reaches the open meadow where the cricket chirps and where there is not a single man to be seen, only the snipe wagging their tails and poking at the mud with their bills. I can feel him coming nearer and nearer, and my heart becomes glad. So what is Amal thinking? Now Amal is telling Ghaffar that the king has sent a letter for him. And then he is imagining how this postman is coming from the king's palace to his house. वो क्या सोच रहा है? And it is a very elaborate fantasy. Elaborate fantasy मतलब because Amal is secluded, he is bounded within his room, his imagination is very active. है ना, जब आप बाहर नहीं जा पाते हो, आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करते हो, आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप बैठ के सोचो। आपका इमेजिनेशन क्या होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। So this is an example of his imagination, that how active it has become, कि वो पूरा जो है सोच रहा है कि जो पोस्टमैन है वो किंग के पैलेस से निकला और फिर जो है वो एक हिल के से नीचे उतरता हुआ आ रहा है। उसके हाथ में एक बैग है जिसमें कि बहुत सारे लेटर्स हैं, और फिर वो चल चल के कहाँ आता है, माउंटेन के माउंटेन से नीचे उतर के आता है जहाँ पे कि एक वाटरफॉल है, एंड देयर इज अ स्ट्रीम, देयर इज आल्सो अ रिवर। और फिर उस वो रिवर के साथ साथ चलता हुआ कहाँ पे पहुँचता है, इन अ शुगर केन फील्ड। और बिकॉज द शुगर केन इज सो टॉल, he gets lost in the sugarcane field. हम उसको फील्ड में नहीं देख पाते,
क्योंकि शुगर केन्स जो है क्या है वो इतने बड़े बड़े हैं. एंड देन ही कम्स आउट ऑफ द शुगर केन फील्ड इनटू अ प्लेन फील्ड. Okay, so we can see how active his imagination is, that he can picture the small details of the postman bringing the letters from the king's palace. Say, Fakir, do you know the king who has this post office? I do. I go to him for my alms every day. Good. When I get well, I must have my alms too from him. May not I? You need not, you won't need to ask, my dear. He'll give it to you of his own accord. Okay, so he keeps on talking about the king with Ghaffar. And then Madhav comes. Now Madhav is very angry. Have you any idea of the trouble you have got me into between you two? What's the matter? Now nobody knows why Madhav is so angry. So Ghaffar is asking, what happened? Madhav, I hear you have let it get rumored about that the king has planted his office here to send messages to both of you. Now Madhav, why Madhav is angry? क्योंकि सब जगह क्या है, ये रूमर फैल गया है कि जो है अमल के पास जो है किंग क्या कर रहे हैं, वो अपने लेटर्स भेजने वाले हैं. नाउ एवरीबडी नोज, जहाँ पे भी माधव जाता है सब उसको जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे घर जो है किंग के लेटर्स आने वाले हैं. Well, what about it? Our headman Panchanan has had it told to the king anonymously. Now the name, you should remember the name of the headman. अब तक जो है आपने जहाँ पे भी पढ़ा था सिर्फ हेडमैन पढ़ा था, बट हेडमैन का नाम क्या है? इट इज पंचानन. यू हैव टू फोकस अपॉन सच लिटिल डिटेल्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये किसका काम है कि सब जगह रूमर फैल गया है? किसने फैलाया ये रूमर? ये हेडमैन ने फैलाया है, और उसने जो है किंग को जाकर डायरेक्टली नहीं बट किसी के थ्रू जो है किंग के पास ये खबर पहुंचा दी कि एक छोटा बच्चा है अमल जो कि क्या कहता है कि किंग मुझे लेटर्स लिखेंगे. और हेडमैन ने ऐसा क्यों किया? वो चाहता था कि जो है किंग बहुत नाराज हो माधव से कि जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन सबको देता है या वो ऐसे रूमर्स फैला रहा है. बट व्हाट हैपेंस? माधव, ओके, and with a child like you and a fakir such I am, let's see if the king be angry, and then won't I give him a piece of my mind. So now Amal is very confused, है ना? जब माधव को वो इतना गुस्सा देखता है तो उसको सच में डर लग जाता है कि जो किंग है वो क्या है, वो उनसे नाराज हो गया है ना? बट गफार इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. वो क्या अमल को समझाता है कि अगर king is going to be angry with him, then he is going to scold him. गफार जो है किंग को भी जो है डांट लगा देगा अगर उसने अमल के लिए कुछ कहा. So now doctor comes, and how do you feel today? Awfully. I feel awfully well today, doctor. All pain seems to have left me. Don't quite like the look of that smile. Bad sign that he's feeling well, Chakradhan has observed. For goodness sake, doctor, leave Chakradhan alone. Tell me what's going to happen. Can't hold him in much longer, I fear. I warned you before. This looks like a fresh exposure. Now when the doctor looks at Amal, he feels that Amal is not well. जो अमल जो है लास्ट जो उसका दिन था, जो वो पूरे दिन खिड़की पे बैठा रहा, उससे क्या हुआ? उसको एक फ्रेश इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा डॉक्टर को लगता है कि वो फिर से जो है आउटसाइड एलिमेंट से एक्सपोज हुआ है और उसकी कंडीशन और भी खराब होने वाली है. And then the headman comes. Hello, urchin. Ghaffar, be quiet. Amal, no, Fakir, did you think I was asleep? I wasn't. I can hear everything. Yes, and voices far away. I feel that mother and father are sitting by my pillow and speaking to me. So now you can see that Amal is becoming more and more sick. अमल की तबीयत क्या हो रही है? धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही है.
और अब अमल को जो है क्या दिखने लगा है, उसको क्या फील होने लगा है कि इसके फादर और मदर हु आर ऑलरेडी डेड, वो जो है उसके पास बैठे हैं. सो दीज आर द साइंस दैट ही इज नियरिंग हिज डेथ, कि धीरे धीरे वो भी जो है किस तरह बढ़ रहा है, अपनी डेथ की तरफ. Headman, your child here is expecting a letter from the king. Madhav, don't you take any notice of him, a mere foolish boy. Headman, indeed, why not? It will beat the king hard to find a better family. Don't you see why the king plants his new post office right before your window? Why there's a letter for you from the king, urchin? Indeed, really. How can it be false? You are the king's chum. Here's your letter, showing a blank slip of paper. This is the letter. Now the headman, Panchanan, he is making fun of Amal. है ना, वो क्या कर रहा है, वो अमल की मजाक बना रहा है और वो उसको एक ब्लैंक पेपर निकाल के दिखाता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा लेटर आ गया. So he is being very mean to Amal and Madhav. I beseech you, headman, don't you joke about these things. तो माधव जो है हेडमैन से कहता है कि वो वहां खड़े होके सबकी मजाक ना बनाए और वहां से चला जाए. Now there is a knocking outside, है ना, जो विंडो है अमल की, वहां पे जो है क्या आवाज आती है कि कोई नॉक कर रहा है. What's that? Who is it? What a bother. Open the door. है ना, तभी बाहर से जो भी नॉक करता है, कर रहा था, वो क्या बोलता है कि डोर को ओपन करो. एंड हु इज दैट? जब वो डोर को ओपन करते हैं, आई शुड थिंक द नॉइस हैज सीज्ड, दे हैव स्मैश्ड द डोर. द किंग्स हेरल्ड एंटर्स, है ना, हेरल्ड क्या होता है, मैसेंजर. तो किंग का जो है मैसेंजर आता है, हेरल्ड. आवर सॉवरेन किंग कम्स टुनाइट, और वो क्या मैसेज लेके आया है कि किंग जो है वो आज रात में आएंगे. हेडमैन, माय गॉड, नाउ एवरीबॉडी इज सरप्राइज्ड दैट द किंग इज अबाउट टू कम. When from the city gates, my friend, the watchman will strike his gong, ding dong, ding dong, dong ding. Then, herald, yes then, the king sends his greatest physician to attend on his young friend. और किंग ने आने से पहले जो है किसको भेजा है, अपने फिजिशियन को. फिजिशियन इज अ डॉक्टर. सो द किंग हैज आल्सो सेंट अ डॉक्टर फॉर अमल. What's this? How close it is here. Open wide all the doors and windows. Feeling Amal's body. How do you feel, my child? Now when the state physician comes, उसको जो किंग का जो डॉक्टर है वो अमल को देखता है और वो क्या कहता है कि why everything is so closed here, कि क्यों doors और windows सब बंद कर रखे हैं. He orders everything to be opened, कि सब कुछ खोल दिया जाए. I feel very well, doctor, very well. All pain is gone. How fresh and open. I can see all the stars now twinkling from the other side of the dark. When everything opens, when the door opens, when the windows open, Amal, he starts feeling very good. He feels as if all pain that he had felt till now is gone. उसकी सारी pain जो है वो खत्म हो गई है. And it is actually afternoon. कौन सा टाइम है दिन का? दोपहर हो रही है. लेकिन जब सारे डोर्स और विंडोज खुल जाते हैं तो अमल क्या कहता है, आई कैन सी ऑल द स्टार्स नाउ ट्विंकलिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द डार्क. ही कैन सी स्टार्स आउटसाइड, है ना. इट इज एज इफ ही इज नाउ रेडी टू मीट हिज एंड. ऐसा होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि जब हमारी डेथ जो है वो हमारे पास आने लगती है, जैसे जैसे हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है ना. इसी तरह अमल को क्या लग रहा है कि उसके चारों तरफ क्या हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और उसको दूर स्टार्स दिख रहे हैं. उन्हें अमल को उन स्टार्स के पास जाना है. ओके. So now we can feel that his end is nearing.
Okay. Amal, of course I am dying to be about forever so long. I'll ask the king to find me the polar star. I must have seen it often, but I don't know exactly which it is. तो जो डॉक्टर है वो क्या कहता है कि किंग भी जो है बहुत जल्दी तुमसे मिलने आने वाले हैं. तो अमल इज लॉस्ट इन हिज ओन फैंटेसी, है ना. अमल के चारों तरफ की जो है दुनिया वो बदल चुकी है. उसको क्या दिख रहा है, सब कुछ डार्क दिख रहा है. तो वो क्या कहता है कि जो है जब किंग आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि वो मुझे पोलर स्टार दिखाएं. He will tell you everything. Will you go about and arrange flowers to the room for the king's visit? He can't have that person in here. Amul, no, let him be, doctor. He's a friend. It was he who brought me the king's letter. नाउ द हेडमैन इज अ वेरी विशियस पर्सन, है ना. उसको कोई भी पसंद नहीं करता. तो जो डॉक्टर है वो क्या कह रहा है कि हेडमैन से कहता है तुम जाओ बाहर और जाके फ्लावर्स का अरेंजमेंट करो. किंग आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रूम को सजाना पड़ेगा, है ना. और डॉक्टर क्या कहता है कि आई डोंट वांट दिस पर्सन टू बी इन द रूम, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली नहीं है हेडमैन. तो वो क्या चाहता है डॉक्टर कि वो हेडमैन जो है वहां से उस रूम से चला जाए. बट अमल क्या कहता है, अमल उसको रोक लेता है. वो हेडमैन को रोक लेता है और क्या कहता है कि डोंट लेट हिम गो. उसको यहीं रहने दो. क्यों, क्योंकि ही इज अ फ्रेंड. और क्यों फ्रेंड है हेडमैन, क्योंकि हेडमैन ने ही जाके किंग को जो है ये बताया था कि वो छोटा बच्चा जो है सबसे ये कहता है कि किंग मेरे लिए लेटर लिखेंगे. और उसी की वजह से जो है हेडमैन की वजह से ही किंग के डॉक्टर और किंग के भी आने का प्लान बना. तो इसीलिए जो है माधव उसको क्या समझता है कि हेडमैन जो है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है. My child, the king loves you. He is coming himself. Beg for a gift from him. You know our humble circumstances. Amul, don't you worry, uncle. I have made up my mind about it. What is it, my child? I shall ask him to make me one of his postmen, that I may wander far and wide delivering his message from door to door. Madhav slapping his forehead, alas, is that all? Amal, what will be our offerings to the king, uncle, when he comes? Now, माधव इज अ बिजनेसमैन, है ना. और उसका माइंड जो है अभी उसी में चल रहा है. वो क्या कहता है धीरे से कान में अमल के कि जब किंग आएंगे आस्क समथिंग फॉर फ्रॉम हिम, उनसे जो है कुछ अच्छा सा मांग लेना, है ना. तो माधव तो अमल क्या कहता है कि हाँ मेरे पास आइडिया है. मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझे क्या बना दें, अपना पोस्टमैन बना लें, ताकि वो पूरे कंट्री में घूमता रहे और उनके लेटर देता रहे. एंड दिस डिसअपॉइंटेड माधव. माधव ने क्या किया, अपना सर पकड़ लिया. वो सोच रहा था कि अमल उनसे कुछ बहुत एक्सपेंसिव मांगेगा, कुछ उनसे ऐसी चीज मांगेगा जिसकी कोई बहुत वैल्यू हो. बट अमल इज अ चाइल्ड. अमल को अभी क्या इतनी ज्यादा दुनियादारी नहीं आती है. सो व्हाट इज ही थिंकिंग कि वो क्या कहेगा किंग से कि वो उसको अपना पोस्टमैन बना ले. ओके, देन माधव देन अमल ऑल्सो आस्क्ड इन रिटर्न कि जब किंग आएगा तो हम उनको क्या देंगे. Herald, he has commanded puffed rice. Amal, puffed rice. Say, headman, you are right. You said so. You knew all, we didn't. Headman, if you send word to my house, then I could manage for the king's advent really nice. Physician, no need at all. Now be quiet, all of you. Sleep is coming over him. I'll sit by his pillow. He is dropping into slumber. Blow out the oil lamp. Only let the starlight stream in. Hush, he slumbers. है ना. तो जो हेडमैन है वो क्या कहता है कि मैं जाके अरेंजमेंट करता हूँ. किंग ने जो भी मांगा है आई विल अरेंज फॉर एवरीथिंग. लेकिन तभी फिजिशियन उसको रोक देता है. और क्यों रोक देता है, बिकॉज नाउ अमल इज डाइंग. वो फिजिशियन क्या कहता है कि ही इज गोइंग इनटू स्लम्बर. वो धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही हैं एंड ही इज अबाउट टू डाई. माधव, what are you standing there for like a statue, folding your palms? I am nervous. Say, are they good omens? Why are they darkening the room? How will starlight help? Silence, unbeliever. Now Madhav is very confused. He cannot see that Amal is dying. है ना. अभी तक माधव को ये रियलाइज नहीं हुआ है कि अमल जो है वो
मरने वाला है। और वो जब फिजिशियन कहता है कि सारी लाइट्स बंद कर दो, तो माधव बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुधा, अमल, तभी कौन आती है? सुधा। Physician, he is asleep. Sudha, I have some flowers for him. May not I give them into his own hand? Physician, yes, you may. When will he be awake? Directly the king comes and calls him. Will you whisper a word for me in his ear? What shall I say? Tell him Sudha has not forgotten him. Okay, so now, though it is not mentioned very clearly, but Amal is dead now. जब physician कहता है he is asleep, that means he has already passed over. और सुधा जो है वो क्या लेके आई है उसके लिए वो फ्लावर्स लेके आई है। और वो फिजिशियन को कहती है कि जो फिजिशियन को वो क्या कहती है कि ये फ्लावर्स जो है तुम किसको दे देना? अमल को दे देना, और उसको मेरा एक मैसेज भी दे देना। एंड व्हाट इज द मैसेज दैट सुधा वांट्स टू गिव टू अमल? टेल हिम सुधा हैज नॉट फॉरगॉटन हिम। ठीक है, सो दिस वाज द होल प्ले, a short play divided into 2 acts, where the death of a very young child is the subject matter. Okay, so what is the theme of the play?